Hi, hi. So, come here. Okay, I have two people who are really positive in my life. Like I would like to say these two people. I keep on looking at them and I get inspired of how to achieve some goals. Especially, they are always up to date. Like see how they prepare themselves. They're like looking stunning always. So please, can we have a great round of applause for Ishan and Preeti here? Okay. भाई कुछ बोलना है बोले यार मैं बोलने से डर रहा हूँ आज. First of all, happy birthday पीयूष. और I know birthday वाले दिन हम लोग मिल नहीं पाए, but it's the best day today to greet you happy birthday. Happy birthday to पीयूष. And congratulations for your song. I know you guy, you are a superstar, rock star. क्या कहूँ अभी वाला. He is one of the like अगर हम लोग sensuous couple हैं तो he is इनकी जो वॉइस है उनकी जो वॉइस है उसमें इतनी सेक्सीनेस और इतनी सेंशुअसनेस है जो हमारे जो मूव्स है हमारा जो डांस है उसे परफेक्ट टिका के लगती है वो वॉइस उनकी. गिटार पकड़ा दो. गिटार है. And I really want you to sing today for us and we dance on your beats. Yeah, after some time. Give him some time. Give him some time. Okay. सिंगर्स को माइक कभी नहीं थमाना चाहिए, बहुत बड़े बोल रहे होते हैं. हमसे गाना गवा दो वही अच्छा. And please, can we again have a big round of applause for this guy who just came in my life. His name is Avinash Gupta. Come on! So guys, I remember this guy. I met this guy because of one more dear friend. One more name you have to take. That is Ravi here, Mr. Ravi Tripathi. He's one of my elder brother. I always respect him. I always love him. Since everyone is here from my team, so I cannot miss him anymore. And I would like to thank each and everybody, especially my exclusive talent, Mr. Ishan and gorgeous Preeti. तो थैंक यू करना चाहूँगा मैं आप लोगों को. और हमारे बीच रवि भैया हैं, पीयूष है. आज हम पीयूष को थोड़ा कुछ सुनेंगे, उसके बाद मुझे स्टार्ट विद सम सॉर्ट ऑफ मीडिया बाइट्स जिसके लिए हम लोगों ने पर्पसली रखा है ना. और साथ ही साथ हमारे सजाद भाई, हमारे छोटे भाई जो कुछ बोल ही देंगे आज. पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ. I met Avinash because of my very dear friend Shehzad. And trust me, I don't know, some connection happened between him and me, Avinash and me. That trust first day. And Avinash I just signed that paper contract. When I signed that contract, I was like, why do I trust this guy? This guy always fucking nails it. He always proves it. I'm sorry for being abusive, but he always nails it, and he always proves himself that yeah, he's an elder brother, and he really knows how to take care of his people. So, thank God, Elysian Entertainment. Thank God. Always welcome, yeah. Avinash. So we all have to rock, and this time being a team and being an honor of Elysian Entertainment. मेरी formal company का नाम ऐसा संदेश एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको मैं बोलना कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसी का एक छोटा सा टुकड़ा है एलिसियन एंटरटेनमेंट, जिसको हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसको बहुत ही बड़ा करेंगे. यही हमारी कोशिश है और यही हम आप लोगों से बेस्ट विशेष भी चाहते हैं. और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि पीयूष अम्भोरे का पहला सिंगल रिलीज हो रहा है जो व्हाइट हिल म्यूजिक कर रहा है. और मेरी सारी बेस्ट विशेष पीयूष के साथ है. मैं चाहता हूँ कि इसके सॉन्ग्स धमाल करते मार्केट में और मेरे पास बहुत सारा बिजनेस है, हम साथ में मिलकर बहुत पैसे कमाएं. थैंक यू वेरी मच. ठीक है. सो आई वुड लाइक टू से पीयूष अपना गिटार प्लीज उठा लो. आई वांट यू टू हियर. सब लोग क्या बोलते हैं, सुनना है? श्योर. यस. नाउ द टाइम टर्न अप ब्रो. थैंक यू यार. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.
एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एलिसियन एंटरटेनमेंट्स का एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट है पीयूष अंभोरे, ही इज़ वन ऑफ द रॉक स्टार काइंड ऑफ द पर्सन। और इसके अंदर जो टैलेंट है, जो भी इवेंट इनके साथ किया हूँ या जो भी मैं अभी इनको देख रहा हूँ, इनकी जो पर्सनालिटी को देख रहा हूँ, इनके अंदर जो क्वालिटी और जो सिंगिंग की जो अदा है एज ए रॉक स्टार वाली, वो जो मैं देखता हूँ तो मुझे इतना मज़ा आता है। इसीलिए आज मैंने ये मीडिया अरेंजमेंट किया है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में पीयूष इज़ गोइंग टू रॉक, और जो भी एक बार इनका इवेंट या इनको एक बार सुनेगा वो इनका दीवाना हो जाएगा। और एलिसियन, सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो सबसे प्लस पॉइंट है कि एलिसियन एंटरटेनमेंट्स के एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट है, इस बात का मुझे बहुत प्राउड है कि हमारे किटी में, मेरी कंपनी की किटी में इस तरह के लोग हैं। तो कैसे मुलाकात हुई, कैसे बॉन्डिंग होना शुरू हुई? अरे ये मेरे ऑफिस में शहजाद करके मेरा भाई है, जो एक बहुत ही अच्छा रिनॉन्ड सिंगर है, जो आप लोगों के बीच है, जो भी आएंगे इस पार्टी में भी मौजूद हैं। शहजाद ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, ये लोग मेरे ऑफिस में आए और पीयूष को जब मैंने गूगल में देखा, जब मैंने उसको यूट्यूब में सुना, तो मुझे लगा कि नहीं, इस बंदे में कुछ बात है, मुझे इसको साइन कर लेना चाहिए। और आज आने वाले दिनों के लिए, आने वाले समय के लिए एकदम एक्सक्लूसिव है मेरे साथ। तो किसी भी तरह के इवेंट हो, प्लेबैक सिंगिंग हो या कुछ भी होता है, लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं पीयूष अंभोरे जी को लेकर के, एंड ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी गुड सिंगर। तो एलिसियन एंटरटेनमेंट का मतलब मोटो क्या है, मतलब क्या करना चाहती है एलिसियन एंटरटेनमेंट्स? इनको बहुत आगे तक प्रमोट करना चाहती है, एलिसियन एंटरटेनमेंट्स के साथ बहुत आगे जाना चाहती है। मैं पर्सनली बीइंग एन अविनाश कुमार गुप्ता, ऑनर ऑफ और रेदर CEO ऑफ एलिसियन एंटरटेनमेंट्स, मैं पीयूष के साथ बहुत आगे जाना चाहूँगा, क्योंकि इस बंदे में कुछ तो बात है, कुछ दम है, ये रॉक स्टार वाली अदाएँ हैं। और मैं इसको बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ इसके फर्स्ट हिंदी सिंगल के लिए, जो इसका लॉन्च हुआ है, और जिसकी म्यूजिक लॉन्च की जा रही है वाइट हिल म्यूजिक की तरफ से, जो कि बहुत ही बड़ा एक अपने आप में बहुत ही बड़ा जगह है और प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च करने के लिए। तो जैसे आपने कहा कि ये एक्सक्लूसिव टैलेंट आपका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो क्या आप सिर्फ यंगस्टर्स पे फोकस करो या फिर और भी? मैं ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऐसा कि सिर्फ यंगस्टर्स पे फोकस करता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यंगस्टर जो मेरे साथ हैं, जो मेरी बातों को समझ सकते हैं, और हमारी तालमेल इतनी ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो गई है कि हम ऐसा नहीं फील करते, ना वो ऐसा फील करता है कि मैं एलिसियन एंटरटेनमेंट्स का CEO हूँ या वो एक सिंगर है, बट हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट एंड मुझे उसको प्रमोट करना है। और पीयूष अंभोरे आने वाले टाइम का बहुत ही बड़ा रॉक स्टार है, एंड आई विश हिम अ वेरी गुड लक, एंड आई फील एंड आई एम प्राउड दैट ही इज गोइंग टू लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज कमिंग लाइफ। तो आपके लिए क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाला है? अपकमिंग प्रोजेक्ट ऐसा है कि बहुत ही जल्दी, जैसा मैंने एक बार आप लोगों से पहले भी मिला था, मैंने बताया था, इस साल मैं कम से कम बहुत ही बड़े 4-5 न्यूज़ देने वाला हूं, जो हमारी एलिसियन एंटरटेनमेंट, जो मेरी फॉर्मर कंपनी है सनराइज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आएंगी, नई वेंचर्स आएंगी, या कुछ मूवी का भी हो सकता है। सो आई कैन नॉट से यू एनीथिंग, बट आने वाले टाइम में बहुत सारी धमाकेदार न्यूज़ देने वाला हूँ मैं आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सबसे पहले हमारी जितनी भी आवाम है उनको नमस्कार सलाम। मैं शहजाद अली, मैं गाना गाता हूँ, कोशिश करता हूँ हर वक्त किसी का दिल जीतूँ अपने गाने से, और मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और हर वक्त याद करते हैं। भी आप अपना सवाल पीयूष का जो है एल्बम आज कितने प्राउड फील कर रहे हैं, कितने खुश हैं आप, क्योंकि पहले आपसे मुलाकात हुई थी इस कंपनी में? डजंट मैटर मेरे से मुलाकात होती कुछ भी हुआ था। मसला ये है कि पीयूष अंभोरे बहुत टैलेंटेड बंदा है, मेरा बड़ा भाई है और हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। और अविनाश भाई मुझे मिले, और एक ज़रिया होता है सिर्फ इंसान, ज़रिया इंसान ही होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंसान को करना होता है, जो बंदा करता है, करने वाला अल्लाह के ज़ात है, मेहनत खुद को ही करनी होती है। तो वो बात है पीयूष में, और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा की तरह जैसा मैं उसको लाइव देखता हूँ, इंशाल्लाह इस गाने में वो वैसे ही होगा और फाड़ देगा, मुझे पूरा भरोसा है। कैसी बॉन्डिंग रही है उनके साथ? क्योंकि मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है यार, हमेशा रहेगी। ऐसा है हमारा कुछ जो बात करने का तरीका है, रहने का तरीका है, हम अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसा नहीं है, तो उससे पता रहता है, एक वो कहते हैं ना, खाना बनता है खुशबू आ जाती है, तो वैसी वाली बात है। तो हम बहुत अंडरस्टैंड है दोनों। अगर वो बड़े भाई है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उनकी हर बात आके सुनना ही है। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहते हैं? जी आ तो रहे हैं इंशाल्लाह, मेरी एक मूवी आ रही है, उसमें मेरा गाना आने वाला है मोहित चौहान जी के साथ, हो जा ज़रा, मतलब मूवी का नाम है, T सीरीज़ से इंशाल्लाह आने को है। और सिंगल्स भी आ रहे हैं 1-2, और आएंगे तो आपको ज़रूर मुखातिब कराएंगे, उस वक्त हमसे आपको ज़रूर बुलाएंगे, इनविटेशन देंगे खाने पे, और आप हमारा भी गाना प्रमोट करेंगे, ये उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान की आवाम को दिखाएंगे आप।
थैंक यू सो मच. बहुत लंबा डिस्कशन है वैसे तो. लेट्स नॉट गो इन दैट डिस्कशन. But hi, I'm Piyush Ambore. I'm from Delhi. I'm born in Maharashtra. I have been singing since the age of 3, and I have been into this reality show called The Voice India. It's in top 3 of it. Since then, I started doing playback and everything here, and my life has pretty much changed. I would say I have sung a lot of songs in Bollywood अभी तक movies के लिए जो कि आ रहे हैं इस साल. This is my first single. ये मेरा पहला सिंगल है. देख लो ध्यान से देख. ये मेरा पहला सिंगल है और इसका नाम है तेरे बिना. सो दिस प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हैपन टू मी. आई गेस इट स्टार्टेड लाइक सो इससे पहले मैंने कवर किया था बहुत पहले. मैं बहुत कम इंटरनेट पे चीज़ें डालता हूँ अपनी, ताकि मैं अपनी एक्सक्लूसिविटी बना के रखूँ, वरना सब कवर डाल के फिर कवर सिंगर्स बन जाते हैं. तो व्हाट आई डिड वाज मैंने हैरी आनंद उनके लिए कवर किया था. उस गाने का नाम था ओ सोनिए. वो कवर मैंने अपने तरीके से किया, काफ़ी अच्छा रहा. वो यूट्यूब पे काफ़ी लोग सुनते हैं प्लेलिस्ट में अपने. तो वो सुन के एक बहुत अच्छे शायर राइटर हैं, इनका नाम है कुमार निशांत. अमेजिंग गाय, इंटरेस्टिंग गाय, वेरी इंटरेस्टिंग गाय. दिस गाय कॉन्टैक्टेड मी डिजिटली टू कोलैबोरेट. एट द स्टार्ट आई वाज लाइक ओके, I really don't know इंटरनेट पे कैसे कोलैब होता है, तो it was new for me. But when he sent his links and when he sent his website and everything, I got to understand that this person is genuine. He's not he was a genuine person. So we got in touch. Earlier I wasn't even emotionally into everything like this project, but I got to know his hard work, how he did this project and everything. He writes beautiful. He has been writing in the Bollywood for long, although he never got that sort of credit with what he actually deserved. But then he just started this thing, and he just called me up, and I joined over this project. We dubbed here in Mumbai, and once we were done, he took that song. There is one more very interesting guy part of this project called Bijoy Shankar Das. So this guy, very very crazy. He never comes in limelight, but is an amazing arranger, programmer and musician, I would say. This guy has nailed this song at such a beauty. He stays in Bengal and he's been working from there. I have been working from here in Mumbai, and Kumar Nishant has been working from Ranchi, and this weird collaboration came out with this song, which has been released by Whitehall. It was our positivity, I would say, and hard work. We just came out like this. That इतने जल्दी कोई गाने रिलीज़ नहीं होते यार. देखा होगा, सालों से प्रोजेक्ट पड़े रहते हैं, रिलीज़ नहीं होते. अच्छा गाया, अच्छा लिखा, अच्छा अरेंज किया, काफ़ी मेहनत करी. अविनाश जी के बारे में क्या कहना चाहिए? Okay. This guy is bliss, beautiful bliss. I would say उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ बताया भी होगा. शहजाद की वजह से मैं उनसे मिला. कट शॉर्ट करते हैं इस बात के बारे में. हम मिलने के बाद एक अच्छा इंसिडेंट ये है कि मिलने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया. और अविनाश इज़ एन ऑनेस्ट गाय, आई वुड से. ही वर्क्स हार्ड ऑन हिज टैलेंट्स, ही चेरिशेस देम, ही ट्रस्ट देम, एंड ही डज लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन द टैलेंट. ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने का ड्रीम हो? और ये कहने के लिए ऑफ कोर्स, सो इफ़ यू से दैट ऑफ कोर्स ड्रीम इज़ रहमान जी, कोई दुराय नहीं होता इसमें. बट मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ यार. द थिंग इज़ लाइक, मैं नहीं मानता कि पुराने लोग या नए लोग अलग होते हैं. मेरे हिसाब से नए लोग बहुत अच्छे आइडियाज़ लेके आते हैं. हम नए आर्टिस्ट, नए म्यूजिशियंस जो आ रहे हैं, उनके आइडियाज़ बहुत अमेजिंग होते हैं यार. मतलब कुछ नए गाने में सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे क्या बात है यार, ये तो टक्कर दे देगा. वो अलग बात है कि आगे जाके बहुत लंबी चौड़ी सीन हो जाती है, करप्ट हो जाता है म्यूज़िक बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन डिमांड नहीं कर रही, या फिर नहीं ये सिंगर नहीं चाहिए. बट एक म्यूज़िक कंपोज़र जब एक गाना बनाता है और अरेंज करता है मूवी के लिए, तो एट द बेस्ट ही अरेंज कर रहा होता है. तो मैं ऑलमोस्ट ऑल म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में ये फील करता हूँ, सबके साथ करना चाहिए काम, स्पेशली न्यू जेन के साथ. तो बिकॉज न्यू जेन इज़ सम अदर नेक्स्ट लेवल. ये इंडिया में नहीं रहेगी, ग्लोबलाइजेशन आ गया, बाहर निकलेंगे सब, विदेश में बजाएंगे. अच्छा, लास्टली अगर 2 लाइनें गुनगुना दे अपने गाने की.
ओके हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गाना रिलीज़ हो गया है यूट्यूब पे. इट्स अ लिरिकल वीडियो राइट नाउ एंड सेकंड सॉन्ग इज़ ऑल्सो गोना गेट रिलीज्ड ऑन 19th of January. इट्स कॉल्ड इज तू ही सच एंड वाइटल म्यूज़िक ये रिकॉर्ड लेवल है जो रिलीज़ कर रहा है ये गाना. दोनों गाने बहुत अमेजिंग है. दोनों गाने आगे जाके मूवी में आने वाले हैं, अच्छी मूवी के अंदर. एंड मैं गा के सुनाता हूँ आपको 2 लाइनें. थैंक यू. बहुत अच्छे. That's why it's a prestige to be here right now. We are here to congratulate Piyush for his upcoming track तेरे बिन and he's a rock star. और हम लोग काफ़ी शोज़ कर चुके हैं एक साथ और बहुत मज़ा आता है एक्चुअली बिकॉज हम दोनों बहुत ज़्यादा रॉक करते हैं. उनकी जो वॉइस है वो बहुत सेंशुअस है एंड वी बोथ आर नोन एज अ सेंशुअस कपल. तो दोनों की जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है, हम दोनों की और पीयूष की. सो इसलिए हम लोग उसमें बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ में रहते हैं. तो एलिशन एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन से प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं आप दोनों? अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में. लॉट्स ऑफ एलिशन एंटरटेनमेंट्स. एक्चुअली जब से हम उनके साथ जुड़े हैं तो हम पहले थे, अभी ऐसे वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर जाते जा रहे हैं बिकॉज ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. अविनाश जी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. ही वर्क्स अ लॉट फॉर अस. He works a lot on our like how to on strategies and all. अपने सभी आर्टिस्ट जो भी exactly के आर्टिस्ट हैं that how to promote our artist. मतलब उनको बहुत है कि सब आर्टिस्ट के लिए वर्क लाएं और अच्छा वर्क लाएं और उस चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं. इज़ वेरी हार्ड वर्कर. आप दोनों आई मस्ट से कि बहुत अच्छे लग रहे हो. तो थैंक यू सो मच. इट्स नथिंग लाइक दैट. आज हमारा ब्लैक गॉथिक लुक है, आप जैसे कि देख सकते हैं. मेरी डार्क आइज़ हैं आज. ये मेरा नेल पेंट भी आज डार्क है और होल ब्लैक वी आर टुगेदर. आज कह सकते हैं प्रीति थोड़ा ब्लैक मर्मेड जैसी लग रही है. तो शी इज सच अ गॉर्जियस गर्ल. आई डोंट नो मैं क्या बनी हूँ बट आई नो मैं अच्छी लग रही हूँ. बस दैट्स इम्पोर्टेंट. अच्छा, इसके अलावा बिग बॉस जो है काफ़ी चर्चे में है आजकल. क्या कहना चाहिए, कौन जीतेगा, कौन टॉप 3 होने वाला है अकॉर्डिंग टू यू? माय गॉड, जैसे कि अभी बहुत प्रिडिक्टेड और बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है कि शिल्पा शिंदे जी जीतने वाली है. बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरी नज़रों में तीनों विनर हैं, विकास जी, शिल्पा और हिना. बिकॉज बोथ तीनों मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी हैं और टॉप कंटेस्टेंट्स हैं इंडिया बिग बॉस के. और आई थिंक दे आर वेरी डिजर्विंग टू बी द विनर. अगर इन तीनों में से कोई भी विनर हो जाए तो हमें खुशी होगी. तीनों एग्जैक्टली. अगर हिना की बात करें तो हिना टास्क में बहुत अच्छी है बिकॉज बट द थिंग इज दिस कि बिग बॉस इज नॉट द प्लेस ऑफ लाइक रोडीज एंड प्लीजविला टू जस्ट टू डू ओनली टास्क. बिग बॉस एक घर जैसा है और घर को कैसे जोड़ के रखते हैं वो शायद शिल्पा जी को पता है कि घर को कैसे जोड़ा जाता है, किस तरह संजोया जाता है, कि सिर्फ आपको टास्क में ही खेलना नहीं है, आपको घर के लोगों को कैसे समेटना है. जैसे अभी शिल्पा जी ने लव को बोला था कि लव तूने बहुत बुरा किया है कि हिना को तूने मुंह तोड़ जवाब दिए हैं बिकॉज हिना ने बहुत कुछ किया है लव के लिए. सो इट्स वेरी बैड बिकॉज एज अ ऑडियंस हमें भी बहुत बुरा लगा था कि इतना कुछ हिना ने पूरे सीजन में अभी लव के लिए किया. और एट द लास्ट मोमेंट जहाँ साथ देने की बात आई तो लव ने अपना मुंह मोड़ लिया. सो शिल्पा जी से बहुत समझा रही थी कि चाहे हिना मेरी कॉम्पिटिटर है इन द शो बट यू हैव टू बी विद हर. जरूरी है वो उनको वही एग्जैक्टली. सो ये कुछ चीज़ें हैं आई थिंक शिल्पा जी की जो पिंच कर जाती हैं, लोगों को अच्छी लग जाती हैं. सो दैट्स व्हाई आई थिंक शी इज द मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस. और आपको लगता है कि विकास भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहा है एज ए मास्टरमाइंड जैसे पहले कहा जाता था? Of course. सारे सपोर्ट चलेगा. Of course, he is mastermind and he is playing the game. He's only playing the game. हम शिल्पा जी के लिए इतना बोल रहे हैं बिकॉज वो गेम भी और घर भी दोनों चीज़ें साथ में संभाल रही हैं. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक जगह पे रिलेशन. अगर मैं मास्टरमाइंड की बात करूँ तो ऑफ कोर्स विकास ही इज फुल ऑन मास्टरमाइंड. और वो गेम को कैसे पलट देते हैं वो उन्हें अच्छी तरीके से पता है. सो आई थिंक ही इज द बेस्ट गेम प्लेयर. एज अ गेम प्लेयर ही इज द बेस्ट.
सो एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट और आपका कोई प्लान है बिग बॉस में जाने का अगर नेक्स्ट ईयर हो सी बिग बॉस जी अगर हमें बुलाएंगे कृपया हमें बुलाया जाए तो हम ज़रूर जाएंगे बिग बॉस 12 में सो बट हम वहाँ भी हम चाहते हैं कि हमें एज अ जोड़ी ही बुलाया जाए बिकॉज अभी तक जो भी वर्क किया हम लोगों ने एज अ जोड़ी में किया तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे अगर एज अ जोड़ी बुलाएं तो शायद उनको बहुत मसाला मिलेगा और अच्छा बहुत कुछ हमारे बारे में जानने को मिलेगा हाँ ये मुझे लगता है ओके थैंक यू थैंक यू